السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ صدر ٹرمپ آج افغانستان سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ واشنگٹن میں کن تجاویز کو حمایت حاصل ہے، اس پر بات کریں گے کچھ ہی لمحوں میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، تو شروع کرتے ہیں ویو 360۔ بارسلونا حملے، تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ امریکہ میں سورج گرہن، لوگوں کی دلچسپی عروج پر۔ اور میڈ ان پاکستان میں ملاقات بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ عمران قریشی سے۔ میرے لیے زیادہ اچھی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام بہتر کرتے ہیں۔ کے انتظار کے بعد آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان کے لیے اپنی انتظامیہ کی پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع جم میٹس کے مطابق یہ حکمت عملی صرف افغانستان تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ پاکستان سمیت تمام جنوبی ایشیا کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل پر ندیم یعقوب کے پاس۔ ندیم، ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک اس حکمت عملی سے متعلق کوئی ٹھوس معلومات عام نہیں کی ہیں۔ جی، جب سے صدر ٹرمپ نے حکومت سنبھالی ہے، یہاں پر واشنگٹن میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور تھنک ٹینکس افغان پالیسی کے بارے میں جو سوالات کرتے رہے ہیں، ان میں پاکستان اور جو پڑوسی ممالک کا کردار ہے وہ بھی شامل ہے۔ کیا امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اپنے ٹروپس کا لیول جو ہے وہ بڑھانے جا رہا ہے؟ کیا جو مصالحتی عمل ہے اس میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لائے؟ اور کیا پاکستان کے جو افغانستان کے بارے میں جو پالیسی کے بارے میں خدشات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی ترکیب اس حکمت عملی میں شامل ہوگی؟ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ نئی حکمت عملی فراہم کرے گی۔ اس بارے میں پہلے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے افغانستان سے متعلق امریکہ کی نئی حکمت عملی کی تفصیلات نہیں بتائیں، صرف اتنا کہا کہ یہ تفصیلات خود صدر ٹرمپ فراہم کریں گے۔ جیسا کہ صدر نے کہا ہے، انہوں نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خود امریکی عوام کو اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس لیے میں اس وقت تک خاموش رہوں گا۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو کیمپ ڈیوڈ میں اپنی قومی سلامتی کے مشیروں سے اہم ملاقات کی، جس کا مقصد افغانستان میں 16 سال سے جاری جنگ سے متعلق فیصلے کرنا تھے۔ اگلے ہی روز انہوں نے اپنے ٹویٹ میں صرف اتنا کہا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں امریکہ میں جن آپشنز پر غور کیا گیا ہے ان میں مزید امریکی فوجیوں کو افغانستان بھیجنا یا سب کو واپس نکالنا اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے نجی شعبے کی خدمات حاصل کرنا شامل ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ فیصلہ سازی کے عمل سے مطمئن ہیں۔ مجھے اطمینان ہے کہ حکمت عملی سے متعلق سارا عمل مناسب طور پر سخت تھا۔ ہم پر اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی کہ سوالات کیا پوچھے جائیں گے اور فیصلے کون سے کیے جائیں گے۔ امریکہ کی عسکری قیادت افغانستان کی موجودہ صورتحال کو تعطل کا شکار قرار دیتی ہے، جہاں طالبان افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ ادھر کابل میں گزشتہ روز صدر اشرف غنی نے افغان فوج کے اندر جو ان کا ایک اسپیشل آپریشنز فورسز ہے اس کو کور کا درجہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ ڈویژن کا اس کا درجہ تھا اور اس کو اب کور کا درجہ دیا ہے، جس کا مقصد جو ہے ان کی کیپیسٹیز کو بڑھانا ہے تاکہ وہ طالبان کے خلاف کارروائیاں زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ نیٹو کے ایک 4 سالہ منصوبے کے تحت نیٹو کی مدد سے اس کے اندر مزید 2 بریگیڈز شامل کیے جائیں گے۔ جی ندیم یعقوب ہمیں کیپٹل ہل سے ٹرمپ انتظامیہ کی افغانستان کے متعلق پالیسی کی اپڈیٹس دے رہے تھے۔ تھینک یو ندیم۔ اور 16 سال سے جاری اس جنگ کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ جن آپشن پر غور کریے، جن کو آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا بھی، ان میں سے کون سی اس وقت واشنگٹن میں زیادہ پاپولر ہیں، اور پھر صدر ٹرمپ کیا وہی آپشن پک کریں گے، اور پھر یہ پالیسی پاک امریکہ تعلقات کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ ان سب سوالوں کے لیے ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اسٹمسن سینٹر کے سمیر لالوانی سے۔ سمیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ Thank you. So the options on the table are send more troops, remove troops, use private contractors. Which option has the most support in Washington, D.C., and does it look like President Trump would go with the most popular option? So it's pretty clear that the most popular option in Washington is the send more troops.
I think there's a large consensus that nobody wants to walk away from Afghanistan looking like they've lost, that the United States has lost the war. So there is an agreement that there should be more troops. It looks like the Trump administration is leaning towards that, and President Trump will announce that tonight. One of the signs is that the key opponent to that, Steve Bannon, is now out of the White House. And so that changes the balance of advisors. And most of the advisors are supporting the plus-up of troops. Now, each of these strategies has trade-offs and costs and risks. And this particular one, it's unclear, though, what lies beyond the military options, right? So all of these are about sort of the level of force levels, but not necessarily a political strategy. And that's where we have shortfalls in terms of whether there's a reconciliation option, whether you can get power brokers and political parties on board that. Right, and we're going to talk about power brokers and the political solution in just a moment. यहाँ पर बताते चले, समीर लालवानी का कहना है कि वाशिंगटन डीसी में इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर सबसे पॉपुलर ऑप्शन यही है कि फौजियों की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि कोई भी अमेरिका में इस वक्त खासतौर पर इंतजामिया में ये नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि अमेरिका शिकस्त तस्लीम करके अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। और समीर का कहना है कि एक बहुत बड़ा साइन कि सदर ट्रंप ट्रूप्स की यानी फ़ौजियों की तादाद में इजाफे का ऐलान करेंगे और वो इस ऑप्शन की हिमायत करते हैं। उसका एक बड़ा साइन यह है कि स्टीव बैनन, जो उनके चीफ स्ट्रेटजिस्ट थे और चाहते थे कि अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर फ़ौजियों का इनखला किया जाए, वो अब इस ओहदे पर फाइज नहीं रहे। तो जो टीम सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसमें ज़्यादा कंसेंसस इसी ऑप्शन पर नज़र आ रहा है। स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स. We have seen that the coalition support fund reimbursement to Pakistan for this year was stopped because of the fact that the Secretary of Defense could not certify that Pakistan was doing enough against the Haqqani network. Pakistan, of course, denies these charges. Some people online, I was reading comments, were saying that if the US stops sending funds to Pakistan, in a way that's good, because that would mean that Pakistan can have a more independent foreign policy, that they won't have to be answerable to the US. Sure. Is that a reasonable way of looking at this? So let's first be clear that it wasn't a total stoppage of funds, it was just a reduction. And I think the US has gradually been reducing funds since 2011. And that gradual decline is just a change in the balance of priorities of the United States, but also in terms of the divergence between US and Pakistani interests when it comes to Afghanistan. So I think this was inevitable to some degree, but that doesn't mean that neither side does not need the other for various objectives. I think the United States still needs Pakistan for intelligence cooperation, for some counterterrorism cooperation, and Pakistan simultaneously probably needs a relationship with the United States, a relationship with a great power beyond China. But many in Pakistan feel that that relationship has made Pakistan subservient to the US. Well, I don't think it's necessarily subservient, but I think that there have been times when Pakistan believes its interests are not insured from its relationship, and for that there has to be a renegotiation in the terms of the relationship. But I don't think it means the relationship is totally not in Pakistan's interest. Okay. So समीर लालवानी का कहना है कि जो कोलिशन सपोर्ट फंड्स की मद में जो रकम पाकिस्तान को मिलती है उसमें वक्त के साथ साथ कमी इसलिए की गई है क्योंकि दोनों जानिब के जो मफादात हैं उसमें देखा गया है कि कुछ फ़र्क है, वो एक ही पेज पर नहीं है दोनों। लेकिन ये बात भी सोचना दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात में मज़ीद खला पैदा होता है तो वो अच्छा होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही साइडों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक दूसरे की ज़रूरत है और उसका ताल्लुक सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं बल्कि रीजनल पॉलिसी से है और पाकिस्तान के अपने और अमेरिका के अपने मफादात से भी है। Last but not the least, a political solution in Afghanistan. When the Taliban have put this condition that they would want to see international troops go out of the country, leave the country before they come to the negotiation table. Now, if the US sends more troops, what hope is there for a political solution in Afghanistan? Well, I think both positions for the United States and the Taliban are sort of opening moves in terms of their demands. The Taliban's demanding total withdrawal, the U.S. is demanding total disarmament and coming to sort of the political process. And that's where the space for negotiation exists. I think to some degree the United States need to commit itself to actually wanting a political negotiation, which is what reconciliation ultimately relies on, is a negotiation with the Taliban and accepting the fact that they will have a role in a future Afghan government of some sort. If the U.S. can sort of explicitly say that and put that on the table, then I think you'll start to see some thaw, maybe from the Taliban side, maybe sort of quietly or through back channels, that there is space for discussion. But isn't that obvious to the Taliban so far that the U.S. would be okay if they were part of the government? I do not think that's obvious. I think the United States has been
inconsistent in its public statements, and even internally there's been mixed messages for the last 8 years. So समीर का कहना है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात है तो तालिबान की तरफ से ये कंडीशन कि गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो और अमेरिका की तरफ से ये पॉलिसी कि वो मज़ीद फ़ौजी भेजे, ये दोनों की ओपनिंग मूव्स हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि अमेरिका को ये बहुत वाज़ेह कर देना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहता है तो तालिबान की किसी किस्म की शमूलियत हुकूमत में उसको मंजूर होगी। समीर का कहना है कि अब तक अमेरिका ने इस बात को बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं किया और इसीलिए तालिबान और अमेरिका अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर ही खड़े हैं। पॉलिसी आज शाम क्या आती है जो सदर ट्रंप रिवील करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कल के शो में। फॉर नाउ थैंक यू सो मच समीर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। और इस वक्त हम चलेंगे वापस साकिब अल इस्लाम के पास। जी साकिब। थैंक यू सारा। बात करते हैं बार्सिलोना की, जहां जुमे के रोज़ होने वाले हमले में मुलविस 12वें फ़र्द की तलाश का दायरा अब फ्रांस तक फैल चुका है। स्पेन की पुलिस का कहना है कि उन्हें 22 साला मराकिश नजाद यूनुस अबू याकूब की तलाश है, जो मुमकिन तौर पर इस हमले का मास्टरमाइंड और वो ड्राइवर है जिसने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी थी। हमले में 13 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक अबू याकूब 12 अफराद पर मुश्तमिल उस सेल का आखिरी रुकन है जिनमें से अब तक 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी या तो पुलिस के हाथों मारे गए या उस धमाके में हलाक हो गए जो हमले से एक दिन पहले एल कनार नामी कस्बे के एक घर में हुआ था। कुछ ही देर में हम चलेंगे वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर, जहां आपसे चंद ही घंटों के बाद आज सूरज ग्रहण देखने के लिए आने वालों का हजूम होगा। इसकी तस्वीर और वीडियोस आप देख सकेंगे हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां बहुत सी अहम खबरें और दिलचस्प फीचर्स और वीडियोस भी मौजूद हैं, जैसे कराची सर्कुलर रेलवे को चीन के ताउन से दोबारा शुरू करने की कोशिशों में हाल रुकावटों पर एक मजमून। आप भी पढ़िए और अपनी राय दीजिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। इराकी मीडिया के मुताबिक इराकी फौज के कल लॉन्च किए जाने वाले ऑपरेशन में दाइश के जेर कब्जा शहर तल अफार के इर्द गिर्द के कई इलाकों को आजाद करा लिया गया है। तल अफार का शहर इराक के उन चंद इलाकों में से है जिन पर अभी भी दाइश का कब्जा है। अमेरिकी बहरिया के USS जॉन एस मैकेन नामी बहरी जहाज के सिंगापुर के मशरिक में एक मर्चेंट शिप से टकरा जाने के हादसे में अमेरिकी बहरिया के 10 सेलर्स अभी तक लापता और 5 जख्मी हैं। USS मैकेन का नाम अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन के वालिद और दादा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अमेरिकी नेवी के लिए खिदमत सरअंजाम दी। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने पीर के रोज 10 रोजा मुश्तरका सालाना फौजी मशकों का आगाज किया है। मौसम गर्मा में होने वाली इन बड़े पैमानों की मशकों का मकसद शिमाली कोरिया की जानिब से किसी मुमकिन हमले के जवाब की तैयारी करना है। शिमाली कोरिया, रूस और चीन की जानिब से जेर तनकीद रहने वाली इन मशकों में इस साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7,500 कम अमेरिकी फौजी शिरकत कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बदबूदार फूल अमेरिकी दारकूमत के बोटेनिकल गार्डन में खिल गया है। अपनी बू की वजह से मुर्दा लाश का फूल कहलाने वाला कॉप्स फ्लावर एक नायाब पौधे पर उगता है जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे में पाया जाता है। पिछले 16 सालों में दहशतगर्दी के नतीजे में हज़ारों पाकिस्तानियों का खून बहा है। इमरान कुरैशी अपनी पेंटिंग्स में इस दर्द की कई तहें देखने वालों के सामने खोल देते हैं। जर्मनी के डॉइचे बैंक का आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और अमरीकी महकमा खारजा का आर्ट इन द एम्बेसीज अवार्ड समेत वो कई बैन अवी एजाज़ हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इस आर्टिस्ट से आइए मिलते हैं हमारे वीकली सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में। मेरा काम हमेशा से 2 मुतज़ाद चीज़ों के मुताल्लिक़ है, आइडिया ऑफ लाइफ और डेथ। होप भी मुझे लगता था उसमें है, क्योंकि अगर आप मेरा काम देखते हैं वो खून लगता है, लेकिन करीब जाएं तो उसमें फॉलिएज है, फ्लावर्स हैं जो निकल रहे हैं, तो आपको वो कंफ्यूज करता है कि वो खून है कि फूल हैं। 9/11 के बाद जब, और स्पेशली 2010 और 11 में जब बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए और पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज़्यादा उसका नुकसान उठाया, उन लोगों को एक तरह से एक्नॉलेज करना है। आजकल मैंने एक इंस्टॉलेशंस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ जिसका टाइटल है एंड दे स्टिल सीक ट्रेसेस ऑफ ब्लड। आई थिंक वो एक बहुत इंटरेक्टिव किस्म का काम है जिसमें लोग, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो शामिल होते हैं मेरे साथ और उसको बनाते हैं। जब मैं काम करता हूँ तो मेरा और वो मेरे काम का एक डायलॉग होता है। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने काम में कहता हूँ और करता हूँ। अगर आप
सच्चे हैं अपने काम के साथ या अगर आप झूठ नहीं बोल रहे अपने काम में, तो आई थिंक मेरा ये बिलीव है कि वो ज़रूर इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ और कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ता है। काम के रिस्पॉन्सेज हर तरह के हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं उनको इख्तिलाफ है मेरे काम से सख्त किस्म का, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो उसको काफ़ी पसंद करती है, तो ये तो फिर आगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुखालफत भी काफ़ी सेहतमंद होती है, सिर्फ एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आई थिंक वो ख़तरनाक होता है। मुझे कई साल हो गए हैं और मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ अपनी एग्जीबिशन की वजह से। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ रहना शुरू कर दूँ। मेरे ख्याल है मसाइल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप भाग जाएं उस जगह को छोड़ के। ठीक है, मैं अकेला भागूंगा लेकिन पूरा मुल्क तो वहीं पर है, उसकी सारी कौम तो वहीं पर है, तो उन्हें छोड़ के भाग जाना तो एक बुज़दिली है मेरे ख्याल से। वो जो इन्वायरमेंट है, जो मुश्किलात होती हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, मेरा तो बिलीव है, और अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को पा लें तो आपके काम में फिर एक जान आ जाती है। अवार्ड सिर्फ ये नहीं है कि आपने बाइनियल में अवार्ड लिया या डॉइचे बैंक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी था। मेरे ख्याल है जो आप काम करते हैं और अगर आप सेटिस्फाइड हैं और वो लोगों तक कम्युनिकेट कर जाता है या वो इतना इफेक्टिव होता है कि लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है। मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात इनकी ये होती है कि पाकिस्तान का नाम आई थिंक बेहतर करते हैं। और हमारे हाथ में है ये सोलर इक्लिप्स देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस जो कि नासा ने जारी की हैं। आज अमेरिका भर में लोगों के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि एक्साइटिंग भी है, क्योंकि 1918 के बाद यानी पूरे 99 ईयर्स के बाद यहाँ पर एक मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका के बाद हिस्सों में नज़र आ रहा है। तो आपने तैयारी कर ली है? जी, पूरे मुल्क से के एक कोने से दूसरे कोने तक देखा जाएगा ये मुकम्मल सूरज ग्रहण, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सोलर ग्लासेस मेरे पास हैं और लोग शादियाँ कर रहे हैं जनाब सोलर इक्लिप्स के मौके पे। उसके अलावा जाहिर है कि बहुत सी यादगारी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, टी शर्ट्स बेच रहे हैं लोग, तो काफ़ी पैसे भी कमाए जाएंगे आज के दिन, लेकिन बहुत सी मेमोरीज जो हैं वो बनाई जाएंगी, वो सबसे काश मैं ये लगा के पढ़ सकता, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसको। इससे सिर्फ आप जो है सूरज ग्रहण देख सकते हैं। और सहर हमारी साथी हमारी साथी सहर माजिद जो है वो इस वक्त वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में है, जहां लोग बड़ी तादाद में सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए जमा होंगे। सहर, क्या तैयारियां चल रही हैं आज म्यूजियम में? जी साकिब, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में वाक़ स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम की रसदगाह के सामने मौजूद हूँ, जहाँ सूरज ग्रहण देखने के लिए ख़ास तैयारियाँ की गई हैं, जहाँ स्पेशल टेलीस्कोप्स का इंतज़ाम किया गया है और लोगों के दरमियान फ्री सोलर इक्लिप्स ग्लासेस तकसीम किए जाएंगे, जिनको पहनकर सूरज ग्रहण देखने से आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वाओ, फ्री सोलर इक्लिप्स ग्लासेस, आई एम एक्साइटेड। लेकिन सूरज ग्रहण की इस गहमा गहमी के बीच हमें उन साइंसदानों को नहीं भूलना चाहिए जो इस मौके की तैयारी के लिए काफ़ी अरसे से सर्च कर रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ ममालिक में सूरज ग्रहण के हवाले से कुछ तोहमात पाई जाती हैं, जैसे कि एक ख्याल ये किया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट खवातीन यानी कि हामला खवातीन सूरज ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलेंगी तो इससे उनकी या बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इन तोहमात में कितनी सच्चाई है और नासा एजेंसी सूरज ग्रहण के बारे में क्या तहकीकात करने की तैयारी कर रही है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये सूरज ग्रहण अमरीकी रियासत ऑरेगन के शहर लिंकन बीच से लेकर साउथ कैरोलिना के शहर चार्ल्सटन तक देखा जा सकेगा। जो लोग इन हुदूद से बाहर हैं वो जुज़वी सूरज ग्रहण देख सकेंगे। सूरज ग्रहण के बारे में पाई जाने वाली तोहमात के बारे में हमने नासा में एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर मंसूर अहमद से बात की। तो बहुत कॉमन फिनोमेना है, तो इसमें कोई वो ऐसी जादू की बात नहीं है, तो ये सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री का है, इसमें कोई सुपरनैचुरल वो नहीं है फिनोमेना। जमीन के किसी एक मखसूस मकाम के लिए मुकम्मल सूरज ग्रहण एक नायाब अजूबा है। अगरचे औसतन हर 18 महीने बाद दुनिया के किसी न किसी हिस्से के लिए मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, लेकिन किसी एक ही मकाम पर मुकम्मल सूरज ग्रहण दोबारा 340 से 410 सालों बाद होता है। चूँकि इस मर्तबा अमरीका के कई इलाकों में मुकम्मल सूरज ग्रहण हो रहा है, मंसूर अहमद समेत नासा के साइंसदान इस बारे में खासे एक्साइटेड हैं। सूरज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम खाली नज़र से देख नहीं सकते, राइट। लेकिन सूरज की जो कोरोना है जो उसके सरफेस के ऊपर है, जब आप सूरज को ब्लॉक कर दें उसकी रोशनी को, तो वो जो कोरोना है वो नज़र आ जाता है, वो हम देख सकेंगे ग्राउंड बेस से और स्टडी कर सकेंगे। उसके अलावा कई प्लैनेट्स हैं जो वीनस जो है जो कि सूरज के ज़्यादा करीब है, वो रात को कम नज़र आता है,
तो उसकी स्टडी सिर्फ रात को ही हो सकती है और बहुत कम महीनों में हो सकती है, जिसका फ़ायदा उठा के वीनस को स्टडी कर सकते हैं। नासा न सिर्फ खुद इस मौके से फायदा उठाना चाहता है बल्कि अवाम को भी इसमें शरीक करना चाहता है। इसीलिए नासा ने खास ग्लासेस तैयार किए हैं जिनको पहनकर बिना किसी रिस्क के सूरज ग्रहण का मंजर देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण के मनाजिर की लाइव स्ट्रीमिंग नासा की वेबसाइट पर नशर की जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा मुकम्मल सूरज ग्रहण अब से 17 साल के बाद ही आएगा। पाकिस्तान के अलावा उसके पड़ोसी ममालिक जैसे कि इंडिया, चीन और अफगानिस्तान के लोगों को भी ऐसा मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए 17 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दिल बर्दाश्त होने की कतई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि आप इस सूरज ग्रहण की लाइव स्क्रीनिंग अब से कुछ ही देर बाद नासा की वेबसाइट या उनके फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। और नासा की फेसबुक पेज पर या उनकी वेबसाइट पर सूरज ग्रहण देखने के लिए आपको सोलर इक्लिप्स ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी साकिब, वंडरफुल। सहर, ये बताइएगा कि म्यूजियम क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई खास तैयारी की है लोगों को हैंडल करने के लिए? जी सारा, म्यूजियम की सोर्सेज से मुझे पता चला है कि यहाँ 10,000 से ज़ायद लोग मुतवक्को हैं, जिसमें कुछ स्कूल ग्रुप्स भी शामिल हैं जिनके लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन का इंतज़ाम किया गया है। उस प्रेजेंटेशन में सोलर इक्लिप्स के बारे में अहम मालूमात फराहम की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पपेट शोज़ भी अरेंज किए गए हैं और सूरज ग्रहण की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यहाँ भी पेश की जाएगी। इस म्यूज़ियम में भी उसका इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल सहर, थैंक यू। सहर माजिद हमारे साथ थी स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम से, जिसके आसपास नेशनल मॉल पर आज बड़ी तादाद में लोग सूरज ग्रहण देखने के लिए इकट्ठे हैं। आ रहे हैं। That's incredible। और ये इसलिए कहा जाता है कि सूरज ग्रहण की तरफ ना देखें क्योंकि उससे आंख का जो रेटिना, जो आंख का पर्दा होता है, वो जलने का खदशा होता है। लेकिन मजे की बात है कि फुल सोलर एक्लिप्स को देखना नुकसानदेह नहीं है। जो जुजवी सोलर एक्लिप्स होता है उसको देखना ज्यादा नुकसानदेह है। ग्लासेस भी जो है आप बिल्कुल देखें कि वो नासा से ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और बिल्कुल वो ऐसी ग्लासेस हैं जो आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। द बेस्ट थिंग इज कि आप इसको ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं। खैर हमारे पास तो है, सो आई एम गोइंग आउट टू वॉच इट। लेकिन चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेजेंडरी अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल लुइस कल लॉस वेगस में अपने घर में इंतकाल कर गए। दुनिया भर में अपने फ़न के लिए मारूफ जेरी लुइस ने अपने करियर का आगाज़ डीन मार्टिन के साथ 50 की दिहाई में नाइट क्लब्स में कॉमेडी एक्ट्स के साथ किया। लुइस सिर्फ 20 साल के थे जब उनकी जोड़ी डीन मार्टिन के साथ दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी और दोनों अदाकारों के रास्ते तो जुदा हो गए। लेकिन उसके बाद भी लुइस 60 की दिहाई में बॉक्स ऑफिस पर कई साल तक नंबर 1 रहे। उनकी बहुत सी फिल्में आज भी क्लासिक समझी जाती हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ साकिब कॉमेडी के जरिए ही ऑडियंस के दिलों पर राज नहीं किया, बल्कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामी मर्ज के इलाज के लिए भी 55 साल तक फंड रेजिंग की और इस दौरान उन्होंने $2.5 अरब जमा किए, जिससे इस मर्ज पर तहकीक और इसके इलाज में बहुत मदद मिली। Laughter is our safety valve. Laughter helps us get through Sarajevo. It helps us get through the stupid things that politicians do. Laughter is our secret, most important device is to laugh. लुइस के इंतकाल पर ट्विटर भी उदास है। स्टार ट्रेक से शोहरत पाने वाले अदाकार विलियम शैटनर ने एक ट्वीट में कहा कि आज दुनिया पहले से कम फनी है। और इसके साथ साथ जो एक्टर सैमुअल एल जैक्सन है, उन्होंने लिखा है कि जेरी लुइस यकीनन ऊपर पहुंचकर भी सबको हंसा रहे होंगे। बिल्कुल सारा, उनकी एक खासियत थी कि उनकी फिल्में देखकर चाहे आप सुन ना भी रहे हो तो आपको हंसी आ जाती थी। वो ऐसी एक्टिंग करते थे और ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए उनकी जो एक्टिंग थी, यही उनकी एक अदाकारी का खासा था कि मतलब जैसे चार्ली चैपलिन थे, उनकी सिर्फ आप देखकर उनके जेस्चर्स और उनकी एक्टिंग आपको हंसी आ जाती थी। लुइस एक लेजेंड जिनको आज दुनिया खुदा हाफिज़ कह रही है। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/urdu पर, जहां और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Being the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, I feel a great responsibility to do as good a job or as great a job as you possibly could do, because the lives
of so many people throughout the world, people with HIV/AIDS, people with malaria, tuberculosis, respiratory diseases. All of those things come under the rubric of what I'm responsible for, to develop the interventions that would be ultimately not only life-saving, but prevent suffering and disease throughout the world. Well, I was born and raised in Brooklyn, New York. My father is a pharmacist, so I had some exposure to the health issue, but I don't think that was the major thing leading me into medicine. It was mostly training in high school and college by the Jesuits, who taught humanities, classics, Greek, Latin. So I became much more of a humanitarian type person than a scientific type person. So I figured the best way to combine an aptitude towards science with a desire to do something that strongly relates to people and taking care of people. You put all of those things together and you come up with the field of medicine in my mind. I like communicating science to the general public so that they can understand why it's important to support it. So my motto for that is precision of thought, know what you're talking about, know what your message is, and economy of expression. Say it as briefly and succinctly as you possibly can. One of the moments among a few that I'm most proud of in my life, my role as the director of an institute that funds most of the research in infectious diseases and the drive towards the development of what has now turned out to be life-saving therapies for a number of diseases, but particularly HIV/AIDS. We've also developed a number of vaccines against very important diseases. And importantly, in 2002, President George W. Bush asked me to go to Africa to see if I could put together a program that would provide life-saving interventions in HIV, a program which ultimately came to be known as the President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR, which already has been responsible for saving several million lives in the developing world. When we first got involved in studying what turned out to be AIDS, we didn't even know what the agent is that caused AIDS. All of the research that was funded by the NIH and our collaborators and people done here have led everything from the identification of the agent, the development of diagnostics, to the combinations of drugs that we now have that can actually get a person with AIDS or HIV infection to live essentially a normal lifespan. That's one of the most impressive medical advances in the history of medicine. There will always be emerging and re-emerging infectious diseases. The one that I get most concerned about, and the thing that does, quote, keep me up at night, is the concern about a brand new influenza-like respiratory illness that will spread very rapidly and cause a degree of morbidity and mortality. But that concern is matched by the effort to try and develop an intervention that would prevent that from happening. Welcome to English in a Minute. Animals, of course, do not wear clothes. So why would Jonathan and Anna be discussing the fashion choices of a wolf? A wolf in sheep's clothing. Hey, have you met Sam yet, the new writer in our department? He is so nice. Yeah, I've worked with him before. Be careful around that guy. Why? He's so quiet. He's a wolf in sheep's clothing. Seems nice on the outside, but really isn't. A wolf in sheep's clothing is a warning. It warns us to not trust someone just because they seem nice on the outside. This advice has been around for centuries. Some say it comes from a story about a hungry wolf who tried to trick his way into a flock of sheep by dressing as one. And that's English in a Minute.